Hello, welcome back to Intrinsic YouTube channel. This is Naeem Ashraf. I hope you all are absolutely fine. Sorry, I was not able to get the videos from so many days. So from today we will start current affairs. So please हमारे साथ बने रहिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बिकॉज इससे क्वेश्चन बने हैं जामिया और एमयू के अंदर वेटेज अच्छा खासा है 30 नंबर का है आपका करंट अफेयर्स का है ना टॉपिक। इसीलिए अगर स्टैटिक बेस के अंदर मिल जाए तो मेरे ख्याल से लगता है 50 to 60 क्वेश्चन बन जाते हैं जीएमआई के अंदर। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, सो लेट स्टार्ट विदाउट डिले। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज इंडिया where is the 8th India-Kazakhstan joint military exercise Kazin 2024 being held? So please remember, uh, the 8th edition of India-Kazakhstan joint military exercise Kazin 2024 began on September 30. Okay, याद रखिएगा in the year 2024 at Surya Foreign Training Node in Auli in उत्तराखंड। ओके, याद रखिएगा द एक्सरसाइज विल रन until 13th October 2024. Okay, basically focusing on strengthening military cooperation between India and Kazakhstan. Okay, अगर बात किया जाए कजिन का तो कजिन has been conducted annually since its inception in the year 2016, serving as a key platform for tactical knowledge. Okay, याद रखिएगा tactical knowledge sharing, improved coordination and strengthened military ties. Okay, and apart from the previous edition की बात की जाए तो कजिन occurred in Otar, Kazakhstan. ये कौन सा एडिशन था याद रखिएगा, ये आपका 7th एडिशन था जो कि occur हुआ था ओटार कजाकिस्तान के अंदर हुआ था। ओके, फ्रॉम 30 से लेकर के 11 तक हुआ था। ओके, इन द ईयर 2023। ओके, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Bharat Jain, India's multimodal large language model, that is MLLM, launched by which ministry? Okay, so please remember, लॉन्च ऑफ भारत जिन की बात किया जाए तो याद रखिएगा ये फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव है। ओके, लॉन्च एंड ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो भारत जिन इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलाइनिंग विद द गोल ऑफ मेकिंग एआई in India and making AI for India. Okay, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इतना तक आप लोग याद रखिएगा। बाकी बात किया जाए एम की तो याद रखिएगा टू क्रिएट ए जनरेटिव एआई सिस्टम कैपेबल ऑफ जनरेटिंग हाई क्वालिटी टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्पीच। Okay, and multimodal content in various Indian languages. Okay, these efforts seeks to reduce reliance on foreign AI models. Okay, Bharat Gen is implemented by याद रखिएगा IIT बॉम्बे। ओके, आईआईटी बॉम्बे के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था भारत जेन को अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम दैट इज एनएम NMICPS। ओके, और याद रखिएगा भारत जिन जो है ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सेसिबल किया जाएगा ऑल इंडियन सिटीजन्स के द्वारा। सही है ना, इतना आप लोग याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of the cruise tourist enhancement initiative that the Union Minister of Port Shipping and Waterways introduced in India? Okay, so please remember, Union Minister Sri Sarbananda Sonowal launched the Cruise Bharat mission, okay, to enhance cruise tourism in India. सही है ना, याद रखिएगा important है। ओके, क्रूज भारत मिशन बात किया जाए इस मिशन का तो याद रखिएगा द मिशन एम्स टू डबल क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 years टारगेटिंग 5 million passengers, ओके, बाय द ईयर 2047। ओके, इनका टारगेट है। सही है ना, याद रखिएगा
and it will be create around 4 lakh jobs in the revamped cruise sector in India. Okay, important है, so please remember this. Next question है, who has become the first woman to take over the Director General of the Armed Forces Medical Services in October 2024. Okay, so please remember, Surgeon Vice Admiral Aarti Sarin became the first women officer to take over as DG, that is Director General of Armed Forces Medical Services. Okay, याद रखिएगा, important है. She took office on 1st October 2024, marking a significant milestone for women in the armed forces. सही है ना. अगर इनकी पहले रोल की बात की जाए तो याद रखिएगा, बिफोर दिस रोल सी हेल्ड सेवरल प्रेस्टिजियस पोजीशन लाइक इन द इंडियन नेवी, हो गया आपका, है ना, या हो गया आपका एयरफोर्स. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम, सी हैज रिसीव्ड अवार्ड्स लाइक द अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल. ओके, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की बात की जाए तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है मेडिकल पॉलिसी मैटर्स को लेकर के रिलेटेड टू द आर्म फोर्सेस. ओके, जो कि प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू मिलिट्री पर्सोनल एंड देयर फैमिलीज. सही है ना. सो प्लीज रिमेंबर, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which new game is said to have its inaugural World Cup in India in 2025? Okay, so please remember, India will host the first time ever Kho Kho World Cup in the year 2025, as announced by the Kho Federation of India, that is KKFI, and the International Kho Federation. सही है ना. So please remember, important है आप लोगों के लिए. अगर KKFI की बात की जाए ना, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो याद रखिएगा इनके जो प्रेसिडेंट हैं सुधांशु मित्तल. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सुधांशु मित्तल इज द प्रेसिडेंट ऑफ KKFI. ओके, and the ultimate goal is to be have Kho recognized as an Olympic sport by the year 2032, and this World Cup is seen as a crucial step towards that ambitious. Okay, so please remember, important है ये भी. Next question है, in which country was the World Green Economy Forum launched? सही है ना, याद रखिएगा, World Green Economy Forum was launched in Dubai, that is United Arab Emirates. Okay, aimed at tackling pressing environmental challenges. Okay, and थीम की बात की जाए तो इस फॉर्म का थीम याद रखिएगा आप लोग, empowering global action, unlocking opportunities and advancing progress. ओके, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. वीडियो की रिवाइंड करके के फिर से सुन लीजिएगा आप लोग. सही है ना. एंड बात की जाए फोकस की, ऑन द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज. ओके, एंड सस्टेनेबिलिटी. सही है ना, याद रखिएगा आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country won the SAF Under-17 championship by defeating Bangladesh in the final? Okay, याद रखिएगा, India are the defending champions who won their 6th title by defeating Bangladesh. Okay, याद रखिएगा आप लोग, important है. सही है ना. एंड 2024 साफ अंडर-17 चैंपियनशिप का थोड़ा ओवरव्यू अगर बात किया जाए तो होस्ट कंट्री याद रखिएगा भूटान. ओके, ये कब हुआ था? 30 सितंबर को हुआ था 2024 ऑब्वियसली. ओके, एंड वेन्यू का बात किया जाए तो ये हुआ था चैंगलिमिथांग स्टेडियम, जो कि पड़ता है थिम्फू भूटान के अंदर. ओके, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात किया जाए तो फेयर प्ले याद रखिएगा, फेयर प्ले अवार्ड भूटान. एंड बेस्ट गोलकीपर की बात किया जाए तो ये अहिबान सूरज सिंह, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं. ओके, हाईएस्ट गोल स्कोरर की बात किया जाए तो याद रखिएगा सुजन देंगोल, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं. एंड लास्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर क्या बात किया जाए तो ये होगा मोहम्मद अरबाज, जो कि हमारे प्यारे इंडिया से बिलोंग करते हैं. ओके, इतना आप लोग याद रखिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज sworn in Mexico's first women president in October 2024? ओके, याद रखिएगा, क्लॉडिया, यहाँ पे है ना आंसर फर्स्ट, क्लॉडिया शेनबॉम was sworn in Mexico's first, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट women president. ओके, क्लॉडिया शेनबॉम is a climate scientist and former mayor of Mexico City. Okay, याद रखिएगा important है. Mexico is a country in southern portion of North America. Okay, it is the world 30th largest country by area. Okay, and capital की बात की जाए मेक्सिको की तो याद रखिएगा मैक्सिको सिटी. एंड लास्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात किया जाए मेक्सिको का तो याद रखिएगा स्पेनिश. ओके, इतना कुछ था, आप लोग याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु won the first China Open title in October 2024 by defeating Jannik Sinner? Okay, so please remember, Carlos Alcaraz defeated Jannik Sinner to win his first China Open title. Okay, याद रखिएगा important है. Okay, Jannik Carlos Alcaraz. Okay, एंड चाइना ओपन की बात की जाए तो एक प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट है जो कि एनुअली हेल्ड होता है चाइना के अंदर. ओके, अट्रैक्टिंग टॉप प्लेयर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सही है ना. एंड जैनिक सिनर की बात की जाए तो एक इटालियन टेनिस प्लेयर है बेसिकली. ये अपने एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल एंड पावरफुल शॉट की वजह से जाने जाते हैं. सही है ना. सो इम्पोर्टेंट था, सो मैंने बता दिया, आप लोग याद रख लीजिएगा. Next question है, which five languages have been granted the status of classical language by the Indian government recently? So please remember, the Indian government, the Indian government has recently granted classical language status to Marathi, Bengali, Pali, Prakrit and last Assamese. Okay, याद रखिएगा important है. This decision increases the number of classical languages in India from 6 to 11. पहले तो 6 हुआ करते थे ना, अब कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं. ओके, याद रखिएगा आप लोग. प्रीवियसली की बात किया जाए पहले की तो ओनली तमिल, संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ा, मलयालम एंड लास्ट उड़िया, है ना, ये क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करते थे. बट अब 11 है. ओके, याद रखिएगा, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असामीज. ओके, सो आज के लिए इतना ही. हमारा आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है. अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, और अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वैसे करंट अफेयर्स आपका जीएमआई का मेरे ख्याल से आप लोगों को जुलाई या अगस्त से स्टार्ट करना चाहिए था, हालांकि मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया है. सही है ना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अक्टूबर से आपके करंट अफेयर्स बनेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया है. हालांकि मैं अगर कहना चाहूँ तो आप लोग जुलाई और अगस्त से स्टार्ट करना करंट अफेयर्स. ओके, हालांकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें डेली का एक करंट अफेयर्स आता है 1 पेजेस का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं. सो प्लीज़ आप उसे देखा कीजिएगा. सही है ना. और हाँ, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा. सही है ना. और शेयर उन लोगों को कीजिएगा जो 2025 के अंदर बीएलबी का एंट्रेंस देने वाले हैं. सही है ना, उनके लिए भी फायदेमंद कुछ साबित होगा. ओके, सो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा. इंशाल्लाह आई विल बी कंटिन्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर करेंट अफेयर्स. सही है ना. सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. ओके.